کشمیر کی علیحدگی پسند لیڈر اور دختران ملت کی سربراہ آسیہ اندرابی اور ان کی 2 ساتھیوں کے خلاف NIA عدالت میں الزامات وضع کیے گئے ہیں۔ NIA ذرائع کے مطابق ملزمین کے خلاف مبینہ طور پر ہندوستان کے خلاف جنگ چھیڑنے، بغاوت اور ملک میں دہشت گرد سرگرمیوں کے لیے سازش کے الزامات وضع کیے گئے ہیں۔ NIA کے مطابق ملزمین کو ملک کے اقتدار اعلیٰ اور سالمیت کو غیر مستحکم کرنے کی سرگرمیوں اور سازش میں ملوث پایا گیا ہے۔ سومو اسٹینڈ ترال کا فورسز نے آج محاصرہ کر لیا تھا۔ سپہر 3 بجے کے قریب یہ کارروائی کی گئی۔ اس علاقے میں فورسز نے تلاشی کارروائی چلائی۔ اس موقع پر لوگوں کو قطاروں میں کھڑا کر کے ان کی تلاشی لی گئی۔ یہ سلسلہ تقریباً 1 گھنٹے تک جاری رہا، تاہم اس آپریشن کے دوران کسی کو بھی گرفتار نہیں کیا گیا۔ شوپیاں کے منی سیکٹریٹ میں موسم سرما کے روایتی لباس فیرن کے ساتھ لوگوں کو داخلے کی اجازت نہیں دی جا رہی ہے۔ سیکیورٹی وجوہات کی بنا پر انتظامیہ نے یہ فیصلہ کیا ہے۔ لوگوں کو منی سیکٹریٹ کے باہر ہی اپنے فیرن اتار کر اندر جانا پڑا۔ اس موقع پر لوگوں نے انتظامیہ کے اس اقدام پر حیرت کا اظہار کیا۔ واضح ہے کہ باغات برزولہ میں پیش آئے حالیہ واقعے میں ملیٹنٹوں نے اپنے فیرن میں ہی بندوق چھپاتے ہوئے حملہ کیا تھا۔ اس حملے میں 2 پولیس اہلکار شہید ہوئے تھے۔ اخنور میں فائرنگ پریکٹس کے دوران ایک فوجی جوان کی شہادت ہو گئی جبکہ دیگر 2 جوان زخمی ہوئے ہیں۔ اخنور سیکٹر کے فیلڈ فائرنگ رینج میں لائیو فائرنگ ٹریننگ کے دوران 3 جوان زخمی ہو گئے تھے جنہیں اسپتال منتقل کیا گیا۔ ڈاکٹروں نے ایک جوان کو مردہ قرار دیا جبکہ دیگر 2 زخمیوں کو اسپتال میں بھرتی کیا گیا۔ شہید جوان کی شناخت آرٹلری ریجیمنٹ کے سائن گھوش کے طور پر ہوئی ہے۔ SDPO اخنور اور PRO ڈیفنس جموں نے اس واقعے کی تصدیق کی ہے۔ سابق ملیٹنٹوں کی پاکستانی نژاد بیویوں نے پاکستان میں اپنے خاندان والوں سے ملاقات کے لیے درکار دستاویزات فراہم کرنے یا جلاوطنی کی مانگ کی ہے۔ ان خواتین نے اپنے بچوں کے ہمراہ پریس کالونی سری نگر میں احتجاج کیا۔ ان کا کہنا ہے کہ وہ گزشتہ 12 برسوں سے مشکلات جھیل رہی ہیں۔ انہوں نے ہندوستانی شہریت اور قانونی سفری دستاویزات فراہم کرنے کی مانگ کی تاکہ وہ پاکستان میں اپنے اہل خانہ کے ساتھ ملاقات کر سکے۔ 90 کی دہائی میں پاکستان چلے جانے والے کئی ملیٹنٹ سال 2010 میں حکومت کی بازآباد کاری پالیسی کے تحت واپس ہوئے تھے۔ تب سے ہی ان سابق ملیٹنٹوں کی بیویوں کو شہریت سے متعلق پریشانیوں کا سامنا ہے۔ انہیں پاکستان میں اپنے گھر والوں سے ملاقات کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ ان خواتین نے کہا کہ اگر حکومت ہند یہاں رکھنا نہیں چاہتی تو پھر انہیں جلاوطن کر دیا جائے۔ ہم یہاں یہ پوچھنے آتے ہیں ہمیں کس گناہ کی سزا ملتی ہے۔ عمر عبداللہ صاحب نے ہمیں ریہیبلیٹیشن پالیسی کے تحت یہاں بلایا۔ کیا وہ ہمیں ایسے ہی ریہیبلیٹیٹ کرنا چاہتے تھے کہ بہت سی لڑکیوں کو ڈیورس ہوگی، بہت سی لڑکیاں جو ہیں ویڈوز ہو گئی ہیں؟ کیا ان کے پاس کبھی کوئی گیا دیکھنے کے لیے کہ وہ کیسے رہ رہی ہیں؟ چھوٹے چھوٹے ان کے ساتھ بچے ہیں، 12 سال 14 سال 15 سال لڑکیوں کو ہو گئے ہیں۔ یہ ہوتی ہے ریہیبلیٹیشن پالیسی؟ انہوں نے اپنے دور حکومت میں اگر ریہیبلیٹیشن پالیسی اناؤنس کی اپنے بچوں کے لیے، اپنے لڑکوں کے لیے، کیا انہوں نے یہ سوچا کہ ان کے ساتھ جو فیملیز آ رہی ہیں ان کے ساتھ کیا ہوگا؟ کیا انہوں نے ان کے لیے کوئی ایسی پالیسی نہیں رکھی تھی کہ وہ واپس اپنے وطن جائیں گی؟ ہمیں سٹیزن شپ دینی چاہیے کیونکہ وہ ہماری جو لڑکیاں ہیں سرپنچ بنتی ہیں، وہ DDC الیکشن میں کھڑی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، پاسپورٹ ان کو ایشو ہوتا ہے۔ ہم پہ فورن ایکٹ چل رہا ہے، ٹھیک ہے، میرا اپنا کیس چل رہا ہے پٹن کورٹ میں، 4 سالوں سے کیس چل رہا ہے۔ بہت سی ایسی لڑکیاں جن پہ فورن ایکٹ لگا ہے۔ اگر ریہیبلیٹیشن پالیسی کے تحت ہم لوگ آئے ہیں تو فورن ایکٹ کس بات کا؟ جب میں نے DC بارہمولہ کو اپلیکیشن لکھی کہ مجھے پش بیک کیا جائے، میں یہاں نہیں رہ سکتی، مجھے پورے کشمیر کے چکر لگوائے گئے، کبھی کس دفتر میں جائیں کبھی کس دفتر میں جائیں، یہاں دفتر میں تو مجھے نہیں گھومنا ہے نا، ٹھیک ہے۔ پھر جب لاسٹ میں پہنچی تو مجھ پہ انہوں نے چلان کر کے فورن ایکٹ کر کے کیس لگا دیا۔ ہمارے سب سے پہلے وہ کیس ختم کیا جائے، ہمیں سٹیزن شپ دی جائے۔ اگر آپ لوگ ہمیں انڈین شہری نہیں مانتے ہو، انڈین سٹیزن شپ ہمیں نہیں مل سکتی، ہمیں ٹریول ڈاکومنٹس دیے جائیں۔ اور اگر آپ ٹریول ڈاکومنٹس بھی نہیں دے سکتے، جو لڑکیاں ڈپورٹ ہونا چاہتی ہیں ان کو ہندوستان گورنمنٹ ڈپورٹ کر۔ آل کشمیر ٹرانسپورٹرز ویلفیئر ایسوسی ایشن نے کل سے غیر معینہ مدت کی ہڑتال پر جانے کا اعلان کیا ہے۔ ایسوسی ایشن کے چیئرمین شبیر احمد کا کہنا ہے کہ سرکار نے انہیں ہڑتال پر جانے کے لیے مجبور کیا ہے۔ ٹرانسپورٹرز کرائے میں اضافہ، ٹول سمیت دیگر ٹیکس کم کرنے کی مانگ کر رہے ہیں۔ ہم کو کوئی شوق نہیں ہے اسٹرائک کرنے کے لیے، نہ ہم کو پبلک سے ہم معذرت خواہ ہے۔ ہم نے گورنمنٹ کو پہلے الٹیمیٹم دیا تھا، 3-4 دن اس میں گیپ رکھی تھی، اسی لیے کہ
गवर्नमेंट हमको ऑन बोर्ड ले ले और हमारे साथ जो हमारे 3 मसाइल है उनको हल करके पब्लिक को परेशान न करे। सबसे पहले हम ये किराए को बढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि 20-25 रुपये डीजल में फी लीटर हाइक हो गई, गवर्नमेंट को टस से मस नहीं हो रही है। दूसरी बात यह है कि जो हमको लॉकडाउन में कोविड में और 370-35 में जो इन्होंने हम पर डबल टोकन लगाया, समझो अगर हम 10,000 रुपये महीने को भरते हैं, हमको 20,000 किया खड़ी गाड़ियों को, वो रोल बैक करे। और तीसरा जो हमको टैक्स टोकन इन्होंने लॉकडाउन में ही लगाया 370 में, वो वेव ऑफ करे। कश्मीर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ने लेफ्टिनेंट गवर्नर से अपील की है कि ट्रांसपोर्टर्स के मसाइल का हल निकाला जाए। चैम्बर के सदर शेख आशिक ने कहा है कि जम्मू कश्मीर अच्छे सयाहती सीजन की उम्मीद में है, ऐसे में ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल मईशत को नुकसान पहुंचाएगी। उन्होंने यूटी में ट्रांसपोर्ट पॉलिसी का मुतालबा किया है। अपने तरीके से हायर अथॉरिटीज़ को कन्वे किया है कि इनके साथ बातचीत का एक सिलसिला, देन ट्रांसपोर्ट पॉलिसी बनाने का एक सिलसिला स्टार्ट होना चाहिए। देखिए कब तक हमारा एक ट्रांसपोर्टर जो है सफ़र करता रहेगा, ये सिर्फ इसकी वजह से है कि ट्रांसपोर्ट पॉलिसी है ही नहीं कहीं। ऐसी ट्रांसपोर्ट पॉलिसी लाए जिसको रेस्ट ऑफ इंडिया में कहा जाएगा कि ये जेके मॉडल है। जम्मू एंड कश्मीर ट्रांसपोर्ट पॉलिसी ऐसी होनी चाहिए जिससे कि रियल में लगे कि हमको ट्रांसपोर्टर को लगे कि इसमें बेनिफिट्स है, इसमें सपोर्ट है। ये जो हमारे पास इतने पेपर और इतनी टैक्सेस बढ़ गए हैं, इनको मेरे ख्याल से आज गवर्नमेंट को एक दिल खोल के आना चाहिए सामने, और ऐसी अनाउंसमेंट की ज़रूरत है जिससे इनको लगे कि नहीं कोई इनकी सुनवाई हो रही है कहीं। अगर ऐसा ही रहा तो मेरे ख्याल से हम सारी इकॉनमी के लिए कंसर्न्ड है, हमारी इकॉनमी बैठ जाएगी अगर हमारा ट्रांसपोर्ट बैठ गया। दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच ने कल आधी रात को जम्मू में कार्रवाई करते हुए 2 कलीदी मतलूबा मुलजमीन को गिरफ्तार कर लिया है। छठा से मोहिंद्र सिंह और जम्मू के कैंप गोल गुजराल से मनदीप सिंह को तहवील में लिया गया है। दोनों को 26 जनवरी को दिल्ली और लाल किला इलाके में तशद्दुद की पादाश में पकड़ लिया गया। दोनों मुलजमीन के हामियों ने आज जम्मू नेशनल हाईवे जाम करके एहतजाज दर्ज कराया। मोहिंद्र सिंह जम्मू एंड कश्मीर यूनाइटेड किसान फ्रंट के चेयरमैन हैं। वो खित्ते के बड़े किसान लीडर समझे जाते हैं। उन पर दिल्ली में तशद्दुद के वाकयात में मुलविस रहने का इल्जाम आयद किया गया है। दिल्ली पुलिस ने बिना बताए जम्मू से 2 युवक उठाए हैं, और जो महेंद्र सिंह खालसा जी हैं वो जम्मू कश्मीर में फार्मर के प्रोटेस्ट को लीड कर रहे थे, और अब हमें नेशनल मीडिया से ये पता लग रहा है कि वो दिल्ली में गए थे कहीं। ये नेशनल रात को पुलिस ने नहीं बताया, विदाउट एनी रीजन यहाँ से उठा के ले गए, घर वालों को इन्फॉर्म नहीं किया। आज इसलिए हम मोदी सरकार के खिलाफ जोरदार प्रोटेस्ट कर रहे हैं। कोई पर्चा नहीं, कोई FIR नहीं। जो लोग पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं फार्मर्स के लिए, उनके खिलाफ जाती हो रही है, उनको बिना वजह उठाया जा रहा है। इसका मतलब यह है कि देश में डेमोक्रेसी खत्म हो गई है। क्या इस देश में अपनी आवाज को जो बुलंद करेगा उसको पुलिस उठा के जेल में डाल देगी? हम मोदी सरकार से ये कहना चाहते हैं, आज के बाद जम्मू कश्मीर में आपके खिलाफ जोरदार प्रोटेस्ट होगा। इतनी महंगाई हो गई है, 100 रुपये लीटर तेल हो गया है। लोगों का ध्यान महंगाई से डाइवर्ट करने के लिए ये हिंदू मुसलमान सिख ईसाई को लड़वा रहे हैं। जिला शोपिया में भी कई कौवे मुश्तबा हालत में मुर्दा पाए गए। कुछ रोज पहले वड़ीपुरा इमाम साहब इलाके में कई कौवे पुरअसरार हालत में मुर्दा पाए गए थे। उनके नमूने जांच के लिए जालंधर और भोपाल की लेबोरेटरियों को भेजे गए थे। कुछ नमूनों की रिपोर्ट मुस्बत आने के बाद ये बात वाज़ेह हो गई है कि बर्ड फ्लू ने जनूबी कश्मीर के जिला शोपिया में भी दस्तक दे दी है। पहनू और बलपुरा में भी लोगों ने करीब 6 कौवे मुर्दा देखे। एनिमल हस्बेंड्री और पोल्ट्री की टीमों ने इन इलाकों का दौरा करके मुर्दा कौवों के नमूने हासिल किए। एक आला अफसर ने एडवाइजरी जारी की कि कौवों और परिंदों को हाथ लगाने से परहेज किया जाए। उन्होंने बताया कि फ्लू की किस्म इतनी खतरनाक नहीं है, अलबत्ता लोगों को एहतियात बरतने की ज़रूरत है। इंतजामिया ने फिलहाल वड़ीपुरा में मुर्गों की खरीद और फरोख्त पर पाबंदी आयद कर दी है। वड़ीपुर पे खोचन रात पे काव ये तो पता क्या काव मूवी तुम कर दफन तुम तो रात पे खोचन नुक आयाल लिहाजा कर अपील कर तो ये खौफ दूर। गुलमर्ग में जिग मोड पर जिग कैफे आग की वारदात में पूरी तरह खाकस्तर हो गया है। बताया गया है कि रात के दौरान अचानक आग नमूदार हुई, जिसके नतीजे में
पूरा होटल खाकसर हो गया। अगरचे फायर सर्विसेज के अमले ने आग बुझाने की कोशिश की, ताहम आग के शोलों की शिद्दत इतनी ज्यादा थी कि शोलों ने फौरन पूरा होटल अपनी लपेट में ले लिया। होटल को लाखों रुपए मालियत का नुकसान हुआ है। आग लगने की वजूहात का पता नहीं चल पाया है। गुलमर्ग और टंगमर्ग रोड पर जिग मोड़ पर वाक़ई इस कैफे में दुनिया भर के सयाह आते थे। यहां से गुलमर्ग, द्रंग और दीगर पहाड़ों का नज़ारा करते थे। पुलिस ने इस मामले में एक केस दर्ज कर लिया है। मज़ीद तहक़ीक़ात शुरू कर दी गई है। सनवारा भलीसा में हुए एक सड़क हादसे में एक शख्स मौके पर ही फौत हो गया है। बतियास से चिली रोड पर जा रही इको कार हादसे का शिकार हो गई। फिसलकर ये कार 500 फुट गहरे नाले में जा गिरी, जिसके नतीजे में सनवारा भलीसा के रहने वाले सज्जाद हुसैन ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। ये बात काबिल जिक्र है कि इस इको कार पर नंबर नहीं था। बताया जा रहा है कि फिलहाल कार के कागजात नहीं हैं। हदबंदी कमीशन की पहली मीटिंग का बायकॉट करने पर नेशनल कॉन्फ्रेंस को न सिर्फ हरीफ पार्टियों के लीडरों की तनकीद बल्कि खुद एनसी लीडरों की मुखालफत का भी सामना रहा। पार्टी के सीनियर लीडर सईद बशारत बुखारी ने पार्टी के इस फैसले पर सवाल खड़े किए हैं और इसे गैर दानिशमंदाना कदम करार दिया है। पेश है समीर भट्ट की रिपोर्ट। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर सैयद बशारत बुखारी ने दिल्ली में मुनक्किदा हदबंदी कमीशन की पहली मीटिंग का पार्टी की जानिब से बाइकाट करने पर खुलकर इस फैसले की मुखालिफत की है। बशारत बुखारी ने कहा कि एनसी के अरकान पार्लियामान को इस मीटिंग में शिरकत करते हुए अपना नुक्ता नजर पेश करना चाहिए था। सुप्रीम कोर्ट में कहते हैं कि केस है नो डाउट, लेकिन फिर सारा एक्ट ही वहाँ पे है ना, सारा रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, जिसमें बहुत सारे हमारे कवानीन चले गए जो रद्द हो गए और बाकी कवानीन का इतलाक हो गया। सिर्फ उसका इतलाक आपके डिलिमिटेशन पे नहीं होता है, सारी चीज़ों पे होता है। तो एक पर्टिकुलर चीज़ को लेके मुझे लगता है कि अगर बाहर रहा जाए और अपनी बात ना कही जाए शायद मुनासिब नहीं है। सवाल ये होता है कि अगर वो प्रोसेस आगे चलता है और डिलिमिटेशन हो भी जाता है और क्या लोगों के एहसासात या लोगों की ज़रूरत के मुताबिक नहीं बनते हैं, तब भी प्रॉब्लम है। उस वक्त क्या किया जाएगा? तो मुझे लगता है कि बड़ा ट्रिकी डिसीजन है। रिप्रेजेंटेटिव है, जाना चाहिए और अपनी बात, लोगों की बात वहाँ रखना लाजमी है। नेशनल कॉन्फ्रेंस की हरीफ पार्टियों को इस मामले पर इसे घेरने का मौका मिल गया है। इन पार्टियों ने इल्जाम लगाया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस हदबंदी के इस अमल में दिलचस्पी नहीं रखती, क्योंकि वो समझती है कि ये अमल इसके इंतखाबी मफादात के खिलाफ है। लोगों के विश्वासघात कर रहे हैं, क्योंकि जो जिम्मेदारी इनको अवाम ने सौंपी है वो इस जिम्मेदारी को नहीं निभाते हैं। ये पॉलिटिसाइज हर एक इशू कर देते हैं। कल को अगर कोई फैसला लोगों की ख्वाहिश के मुताबिक न होगा तो उसके लिए यही पार्टियां जिम्मेदार होंगी। सियासी मुबसरीन एनसी के इस इक़दाम को सियासी दाव से ताबीर कर रहे हैं। मैं समझता हूँ नेशनल कॉन्फ्रेंस को इस प्रोसेस में ज्वाइन करना चाहिए था, उनको रीथिंक करना चाहिए एंड दे शुड पार्टिसिपेट इन दिस एंड गिव गुड सजेशंस इन द इंटरेस्ट ऑफ द पीपल। अगरचे बशारत बुखारी ने खुलकर पार्टी के इस फैसले की मुखालिफत की है, ताहम ज़राए के मुताबिक एनसी के दीगर लीडरान, खासकर जम्मू खित्ते से ताल्लुक रखने वाले लीडर पार्टी के इस फैसले से मुतमईन नहीं है। इनका मानना है कि इससे मुस्तकबिल में पार्टी को नुकसान पहुंच सकता है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए जम्मू से समीर भट्ट की रिपोर्ट। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का।